started a no-rent campaign. The movement was strengthened with the inclusion of the Munda Christians of the Lutheran Mission, the Oraons, the Hindus, and also had the support of the tribal leaders and pleaders of Ranchi. The administration took coercive measures for the recovery of arrear rents, and in early 1939, the state almost found it impossible to collect land revenue from the peasants. Nirmal Munda emerged as the leader of the rebels and intensified the agitation. Consequently, the Queen Regent announced certain very minor concessions which were not acceptable to the people. The no-rent campaign continued. On the 9th of February 1939, the Maharani convened a meeting at Sargipalli to listen to the grievances of the people and to induce them to make payment. Around 4,000 to 5,000 people from 30 villages attended and presented a charter of demands. The popular demands included not only restitution of the land rent and forest rights of 1910 settlement, but also abolition of chokidari tax and the monopoly on the hides. Introduction of responsible government was also asked for, in which the people could exercise the right to vote. Total abolition of Bethi, Bheti, Rasad and Magan was demanded. But the Queen paid no heed to the demands. The tribals continued their agitation under the leadership of Nirmal Munda. Finding the situation difficult, the state administration requisitioned joint police force to apprehend the leaders. Few of them were arrested. On the 25th of April 1939, 2 platoons of armed forces, along with the assistant political agent and the SDO, were sent to the village Amko Simko of Sundargarh district to arrest Nirmal Munda on the grounds of holding seditious meetings and assaulting a village chowkidar. But a crowd of around 500 defiant tribal people armed with lathis, axes and other crude weapons resisted the arrest of their leader. Consequently, scuffles broke out and the police resorted to firing. 39 people fell dead and 50 were wounded. Nirmal Munda and many of his associates were arrested. He was sentenced to 6 years of imprisonment in Sundargarh and Sambalpur. He was released from jail on 15th August 1947. समझे? मतलब ये बोल रहा था जब मालगुजारी देने के लिए बंद करेंगे तब गोलीकांड होगा, लेकिन गोलीकांड उड़ीसा झारखंड में हुआ था। मतलब आप लोग देखे होंगे, अभी आ रही जनवरी खरसवां गोलीकांड, 1 जनवरी खरसवां गोलीकांड, फिर कलिंगनगर उड़ीसा में हुआ था 1 जनवरी। बहुत जगह में 1 जनवरी में बहुत सारा ऐसा गोलीकांड हुआ है, आदिवासी को गोली मारा है, लेकिन उसमें इन लोग भी शामिल थे। तो ये मालगुजारी हम लोग नहीं देंगे। मालगुजारी तहसीलदार और नहीं हिकनर अरे सरकार की जो तो नाम मालगुजार नाम हटना दी नाम आ रही आड़िया डंडा तो मालगुजार चोत जैसे कि रूम भरे चिया था तने नाम रूम भरे इसान अलग के अटन रहता का नंगे अटन रहता का अली सरकार के अटन रहता मैं क्या वो कथनो वो निर्मल मुंडा गोली कांड मंडा कौन काम मांगता है कौन निर्मल है शंकर शंकर का शंकर के दुकान तो राजका से गोली कांड होते किसी से ढाई ढाई आधा पटका मालगुजार की चलती हाँ मालगुजार मने निंगन जी मैंने नहीं है वो पैसा का हमारे मैंने पाया वोट नो हमारा पैसा आगे निंगन आगे हनुसी मल्ला ठीक है ठीक ठीक। तो साथियों जोहार जय मूल्यवासी, आप देख रहे हो मेरा मूल्यवासी के भारत यही है कि बहुत सारी जानकारी आपको मिल सकता है, क्योंकि ये है भिखारी लकड़ा, उनका उम्र आप ही सुने और हम आपको पूछ रहे हैं। आपका उम्र कितना है? 180 वर्ष। हाँ 180 वर्ष बंद 180 साल हो गया है, 180 साल हो गया। उनके पास जो बिरसा मुंडा की लड़ाई है, यहाँ पर जो जल जंगल की लड़ाई है, जायका से निर्मल मुंडा लड़ाई किया ना, उनको सुकून आदिवासी मरा दिया मुंडा ठीक समार गोली हो। तो अब उसके बाद उसका जो सरकार आया कितना पैसा जान के जान बदलवा बलू निवार तो कौन धर्म मानता है ना मिशान धर्म, जो आदिवासी नहीं है। तो देखिए साथियों, इनका बोलना है, इनका हम फिर से आपको ही पूछेंगे, लेकिन हमारे आदिवासी में क्या होता है ना, जात और धर्म और पार्टी, ये 3 चीज
तीन चीज को हमारे आदिवासी को टुकड़ा बना रहा है। तो आज पंचम अनुसूची के एरिया में मैं भी हूँ। पंचम अनुसूची मतलब आदिवासी का देश क्या है? पंचम अनुसूची है, षष्ठ अनुसूची है। तो आपको आपका वीडियो में भी देखे होंगे, आगे का वीडियो में आदिवासी का देश क्या है सवाल किया है, लेकिन आपका उत्तर भी नहीं अभी तक नहीं मिला है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग डरते हैं, लेकिन सरकार से हम लोग लड़ते हैं, इसलिए डरते हैं क्योंकि बोली और गोली होना चाहिए भाई। मौत सबका आता है भाई, घर में रहो या बाहर में रहो या बक्सा में रहो, कोई गतरा में रहो, कोई भी लाओ, लेकिन हर समय लड़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई बंद नहीं हुआ है। बिरसा मुंडा का लड़ाई, बिरसा मुंडा ने सरकार व्यवस्था लाने के लिए कोशिश नहीं किया था कि कोई किसी व्यवस्था को लाने के लिए कोशिश नहीं की, लेकिन अभी तक हमारी बिरसा मुंडा का उमर का, लेकिन बिरसा मुंडा को इन लोग अच्छे से जानते हैं भी, फिर भी हम हर समय में, बिरसा कोई नाम नहीं, बिरसा एक आंदोलन है, तो हम ये आंदोलन को लेकर हम हर समय में आप लोग का सामने में वीडियो को पहुंचाते हैं। लेकिन ये वीडियो को पहुंचने के जरूरी हमारे समय में बहुत सारा हम लोग का खर्चा पर्चा होता है, बहुत सारे सपोर्टिंग हम लोग को नहीं मिलते, सपोर्ट नहीं मिलते। सही मतलब ग्रास रूट का जमीनी जो खबर आप लोग को पहुंचने के लिए कोशिश मैं करता हूं, लेकिन इसलिए सुविधा नहीं बनता है मेरे लिए। लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे तो हमारी सुविधा दे सकते हैं, लेकिन आप लोग को जानकारी हर प्रकार का अच्छा जानकारी मिलेगा, सही जानकारी मिलेगा। और सही महीना में जो उस समय का 100 साल का पीछे में जो आदमी जिंदा है उनको खोज रहा है, और उनका जो विचारधारा को आप लोग को सामने में लाते हैं ये मूल्यवासी का भारत का चैनल के माध्यम से। क्योंकि ये चैनल कोई साधारण चैनल नहीं बनाने की कोशिश किया है हम लोग, क्योंकि हमारे जो टीम है अभी मूल्यवासी का भारत का जो टीम सोशल मीडिया का टीम है वो पूरा बेहतरीन काम कर रहा है, अपना जगह में बेहतरीन काम कर रहा है, ताकि ये जो मूल्यवासी भारत का जो चैनल है, ये चैनल हर जगह में इसका लीक आउट करने के लिए कोशिश करे, क्योंकि यहाँ पर जो सच्चाई की बात को सरकार और डेमोक्रेसी के ऊपर में जो बोलने के लिए जा रहा है, जो सरकार अभी बीजेपी, कांग्रेस, बीजेडी, उड़ीसा बीजेडी, तो कुछ भी चीज़ को इन लोग सामना करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जमीनी स्तर के जो बात है आगे का जो पंचम अनुसूचित जगह में घुस कर ये अपना जो बुजुर्ग लोगों से आवाज़ उठाने वाला बात कर रहा है, ये बहुत आम बात है। हमारे बीच में जो कैमरा मैन है, कैमरा को जो पकड़ा है, और मैं आप हमारे पास आज कैमरा मैन नहीं है, हम खुद ही अपना मोबाइल अपना कैमरा से पकड़ के हम ये आदमी से मुलाकात कर रहा है। लेकिन ये आदमी का उम्र कितना है, इनका उद्देश्य क्या है, उनका जो समय में जो लड़ाई लड़ रहा था उनके बारे में हम लोग थोड़ा 2 मिनट पूछेंगे। तो आपका नाम क्या है? विकल लकड़ा। कितना उम्र हुआ आपका? 180 वर्ष। तो आप बिरसा मुंडा को जानते हो? हाँ। जयेश भाई मुंडा को जानते हो? हाँ। बाबा साहेब अम्बेडकर को जानते हो? मुंडा क्या नहीं जानेगा, निर्मल मुंडा को जानता था। और कौन सरकार हमारा काका मर गया था ना, मेरा बाप के भाई हो गया था, बच गया, भगत था ना रांधना खाना में, बच गया। आप उस समय लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय में आपका लड़ाई में क्या उद्देश्य था, किस लिए लड़ रहे थे, कौन महत्व चीज को लड़ रहे थे, कौन चीज के लिए लड़ रहे थे? मालगुजारी बंद करा जाओ। किसको? मालगुजारी। ओ मालगुजारी। साथियों देखिए बहुत बड़ा आवाज है, मालगुजारी टैक्स, मतलब जिसको बोलते हैं हम सरकार को जो अपना घर में रहते हैं फिर भी हम लोग टैक्स देते हैं, इसको बोलते हैं मालगुजारी। हमारे को बंद करा जाओ, बंद कर। हिंदुस्तान सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट बंद तो हुआ, मिशन हुआ, कलेक्टर बन गया, काका पुलिस बन गया। साथियों देखा जानकारी, मालगुजारी मतलब आप जो टैक्स देते हैं ना, आप जहाँ पर देखो देश दुनिया में जो आदिवासी बैठा है उसमें जो शंकर सुना है, कुमार शंकर, सब शंकर है। पुलिस किसको बंदेगा? तो पॉलिटिकल का लाठी समाज को मारने पॉलिटिकल के नहीं ठीक गया ना। होशिल मारते तीन था, तीन होशिल मारते 3 फायर पे, एक खिया 3 फायर सिर्फ खंडा साल को फेंका। उसका बाद में जयपाल सरकार बड़ा पैसा देने के लिए आया ना, जान का जान बदला। कौन धर्म मानता है बोलता है ना, जयपाल से मिशन आदिवासी से नहीं है खाना जो का किया वही का अपना हुआ का भर में उपचार रखें सब आदिवासी काम मानता है ईंद आदिवासी उसका घर में तो ऐसा हालत होकर सीधे मालगुजारी जाता है। इनका जो बात है ये सब एक शब्द को आपको आने वाला दिन में बताएंगे हम। ईंद बोलता है, जयपाल सिंह नाम लेता है, जितना भी वार्ड है इनका, इनसे जो शब्द मिलता है हम लोगों को,
इस शब्द का मतलब क्या है हमको, इस शब्द का हिसाब से हम लोग हर समय में आप लोगों को इस शब्द को जो इसमें जो बात है इनका जो ये बात को आप लोग को हर समय में हम लोग बताने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो जमीनी स्तर का हम लोग को रिपोर्ट ले रहा है, हमारे जो रिपोर्ट है ये मौलिकवासी का भारत की ओर से जो हमारे शेड्यूल बनाए हैं, जो जमीनी स्तर में जो लोग अभी जो 100 साल से ज़्यादा जो है उसको हम लोग खोजने के लिए काम कर रहे हैं। उनके पास जो उस समय का लड़ाई था, ये लड़ाई क्या था, जो उस समय का व्यवस्था क्या चल रहा था, कितना में व्यवस्था कितना कॉन्ट्रीब्यूशन उन लोगों को मिल रहा था। 10 मिनट हुआ उसका मालूम है। बोला बोलिए। 10 मिनट मंजा से आदमी का हमका सेल का काका बका काल गया हम बाबा काल गया हमका 15 होगा 60 तो माल गुजर चेक बांध बनाना है नहीं तो गोली खाने बना। समझा? मतलब इन लोग ये बोल रहा था जब मालगुजारी देने के लिए बंद करेंगे तब गोलीकांड होगा। लेकिन गोलीकांड उड़ीसा झारखंड में हुआ था, मतलब आप लोग देखे होंगे अभी आ रहा है जनवरी खरसुआ गोलीकांड, 1 जनवरी खरसुआ गोलीकांड। फिर कलिंगनगर उड़ीसा में हुआ था 1 जनवरी। बहुत जगह में 1 जनवरी में बहुत सारा ऐसा गोलीकांड हुआ है, आदिवासी को गोली मारा है। लेकिन उसमें इन लोग भी शामिल थे। तो ये मालगुजारी हम लोग नहीं देंगे फिर भी हम लोग काम करेंगे, ऐसा वाला कुछ बात था। तो इसलिए हम आज मिले हैं, लेकिन फिर से हम लोग बात करेंगे इनका ऊपर में। थोड़ा 2 मिनट की बात रखेंगे आप लोग को जानकारी के लिए। तो आपका नाम? विकल लकड़ा। लेकिन आपको बिरसा मुंडा के बारे में जानते हो? हाँ, बिरसा मुंडा कौन था? जयपाल सिंह दिल्ली में रहता था, दिल्ली में हाथी में बोलते थे। अरे ये इधर को मालगुजारी बंद कर जाओ। कौन आवाज उठाए थे मालगुजारी बंद करने के लिए? निर्मल मुंडा मालगुजारी बंद करो, मालगुजारी बंद कर जाओ। मालगुजारी और आशिक सकता नहीं जा और मालगुजारी मर जाए और सरकार बढ़ता और मिट्टी नहीं जा। तो निर्मल सिंह एक बच्चे मांग खा जाए और पार्टी के पीछे कहाँ में नहीं सब बड़े निर्मल मुंडा हम है तो हम हाँ लेकिन थोड़ा पुलिस अच्छा बेटा काली पुलिस नहीं हमें समझ लो उसका चाहिए पूरे हमें होशे चीज़ 3 फाय मतलब हम बंगाल मुंडा उड़ा चेक चमर गंदा था को बंगाल मैं गद्दी में गिर गया गोली मार लग गया और सोच रहा था कानून को नहीं पड़ा ये डायरेक्ट पहले ऐसे आगे कुछ कर खाना था मंदिर और मार और राती गोलदार पर आता और मैं देवो कि हो हमारे सामने जा सिमटला से गोला से मैं देवो कि नहीं बा रागा जो धान का बेच मार से भी 49 रुपया का था ना मर गई बहुत कम थी धान औलांती मालगुजारी पूरा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। मालगुजारी चीना दरकर रहा सकना मगन औलांती चले गोला तो नामे हल्लेन नाम दूसरा की हल्लेन रात करना दूसरा का अड्डन रात करना मालगुजारी चियोत हमने माने मालगुजारी समाज में आ गया आपको मालगुजारी। जैसा कि ये मालगुजारी है, जैसा कि हम लोग टैक्स देते हैं अपना अपने भाषा में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं कुछ भी आप अपना आदिवासी जनजाति के भाषा में कुछ बोलते हैं हम लोग, लेकिन इंग्लिश में बोलते टैक्स देते हैं। जो साल भर में एक बार टैक्स नहीं देते ना, इसको मालगुजारी बोलते हैं। लेकिन हम लोग उस समय भी टैक्स दे रहे थे, अभी भी टैक्स दे रहे हैं। लेकिन आदिवासी के ज़मीन का होते हुए भी, लेकिन आज देखिए इस देश का मूल्यवासी होते हुए भी हमारे ऊपर में टैक्स लग रहा है। देश हमारे के ऊपर, हमारे देश होते हुए भी हमारे ऊपर में ये टैक्स लग रहा है। लेकिन टैक्स लगना क्या ज़रूरी है क्या? अब सोचिए सर, यहाँ का लोग हाँ गांधी महात्मा बचा देश लटानो लगा हमें बचा दे कि राजू सोना रूपा आइन कानून आज आइन कानून गोली कांड बना आइन कानून। लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आ रही है अपना भाषा में, हमारी भाषा में, अपना कुणुक भाषा जो है अभी मारने के लिए कारागार में है, वो भाषा के ऊपर में इस भाषा से बोल रहे हैं। लेकिन आइन कानून जो बनाया है सही बनाया है, संविधान में 5वीं अनुसूची के लिए प्रावधान है, फिर भी आदिवासी टैक्स देना क्यों ज़रूरी है? आदिवासी सरकार को टैक्स क्यों देगा? 5वीं अनुसूची से 6वीं अनुसूची की जो रहते हैं उन लोग को सरकार को क्यों टैक्स देंगे?
लेकिन देश का मालिक बोलते हो, भाषण में मालिक बोलते हो। हमारी सरकार बीजेपी, कांग्रेस, बीजेडी, जितना भी सरकार हमारे हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो बोलते हैं आदिवासी बिरसा मुंडा देश का मालिक है, धरती आबा है, फिर भी क्यों टैक्स लूट रहा है हम लोग से? बोलना आसान है, करने से क्या आसान नहीं बना सकते हैं। साथ ही ये वीडियो बहुत जानकारी वीडियो है। ये जो बूढ़ा से बात कर रहे हैं हम लोग जो ये 180 उम्र हो गया बोल रहा है। कितना उम्र हुआ आपका? 80 वर्ष 180 वर्ष। ऐसा बोल रहा है। लेकिन मैं खुद बोलकर नहीं बुला रहा हूँ, लेकिन इतना भी जो ये बात जो हो रहा है ना, मुझे नहीं, मेरा दिल में तो नहीं पक रहा, मेरे दिमाग में नहीं पक रहा है। लेकिन हम लोग आदिवासी को सरकार बोल रहा है, जो अभी का जो सरकार में जो है हमारे नेता लोग बिरसा मुंडा को जय जय कर रहा है। बिरसा मुंडा देश का मालिक है, बिरसा मुंडा धरती आबा है। धरती आबा मतलब धरती आबा का बेटा लोग हम लोग हैं, आदिवासी लोग हैं। तो फिर भी हम लोग को टैक्स क्यों लेना जाए? हमारी ज़मीन में आप लोग बैठा है। इसका मतलब जो सरकार बोल रहा है कि ये आदिवासी देश का मालिक है, रखवाला है, गाना में बोल रहा है, तो हमारे से टैक्स क्यों लेना जाए? टैक्स क्यों लेगा भाई? तो साथी आप लोग देख रहे हैं, ऐसा वीडियो बहुत कुछ आएगा आप लोग को। ये हर चीज़ में आप लोग को जानकारी इनसे मिलने के लिए आएंगे हम। और इसका बाद भी इनका दोस्त जो है, इनका उम्र में जो है, उनको भी हम लोग मिलवाएंगे भी और जानकारी आप लोग के पास पहुंचाएंगे, क्योंकि ये जानकारी सबसे बड़ा हथियार होता है। ये हथियार से हम लोग आज काम करते हैं चैनल के माध्यम से। साथी जोहार, जय मूल्यवासी।